Hello, welcome students to my YouTube channel. Today in this video, I will explain you the question answer of question number E, chapter 1, components of environment. And if you till now not subscribe my channel, please like and subscribe my YouTube channel for new updates. Let's start. Question number 1, differentiate between the physical and the biological environment. इसमें आपको क्या करना है, फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में लिखना है। आंसर, द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे लैंड हो गया, ज़मीन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। इसी को बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सबसे लेके बनता है। देन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या रहता है, ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स जिसका लाइफ है, हो सकता है ये प्लांट लाइफ, प्लांट से या फिर एनिमल से रिलेटेड हो, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. So write the answer in such a way. You may add some more answers, but it is in short. Okay, so write down the answer. Then question number 2, why is Earth called the blue planet? Earth को blue planet क्यों कहा जाता है? Okay, the answer is the planet Earth is called water planet or the blue planet because of abundance of water on its surface. जो अर्थ के सरफेस पे बहुत ज़्यादा वाटर है, उसके लिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है या फिर वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है. देन द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस कवर 71% of the earth's surface, and also it looks blue from the space. So all the regions the planet Earth is called blue planet. Okay, write down the answer. Question number 3, define biosphere. Why is it important for us? और बायोस्फीयर को डिफाइन करना है और क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. ओके, आंसर, द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ. बायो इज लाइफ एंड स्फीयर इज डोमेन और द रीजन. Then biosphere is the narrow zone of contact between all the three spheres of environment where all kinds of life exist. This is the domain of the sphere of life. Then why it is important for us? Most of the living organisms like plants, animals and microbes present on the earth are found on or near the earth's surface, on the land, water and air, and it is in the biosphere. So it is very important. It is the life sustaining sphere. Okay, then question number 4, explain with the help of an example how physical and biological components of the environment are interdependent. Okay, एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट रहते हैं. The two components of the natural environments are environment and the biological environment. जो components होते हैं, दो components वो हैं natural environment के, physical environment and biological environment. They are largely interdependent and cannot be separated. जो कि interdependent है और separated नहीं हो सकते हैं. And any major changes in the physical environment is bound to bring a change in the accompanying biological environment. अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होता है तो इंटरडिपेंडेंट है, जेहेतु जैसे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा या फिर उसका रिएक्शन होगा. द चेंज कैन बी सडन और gradual. It be a slow process like the soil formation, or it be sudden like the earthquake and the volcanic eruption. And for example, the development of soil takes years together and cannot be visualized through our senses. जैसे मिट्टी बनना बहुत टाइम लगता है. And on the other hand, some changes are very sudden, like the changes brought about by the occurrence of an earthquake or volcanic. Okay, volcano.
वोल्कानो या अर्थक्वेक होता है तो बहुत सडन ही कुछ चेंजेस होता है अर्थ के सरफेस पे। ओके, जैसे कि आप कभी व्हिच कॉजेस डेथ इन ए लार्ज नंबर एंड इट बी द एनिमल्स और प्लांट्स या एनिमल्स का बहुत सारा का डेथ होता है, अर्थक्वेक होता है या फिर वोल्कानिक होता है, तो वोल्कानो इरेजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, explain 2 ways in which human beings are disturbing the natural environment. Human beings are an important part of the environment but are disturbing the natural environment in many ways. We are well equipped to exploit, consume or utilize different plant and animal species existing on the earth's surface. ह्यूमन बींग क्या है, बहुत पावरफुल है, उसके पास पावर है। आप तो इसके साथ साथ क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है बट वो डिस्टर्ब भी कर रहा है एनवायरनमेंट को। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर होम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, और एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। सेकंड पॉइंट, एज ए रिजल्ट तो वाइल्ड एनिमल्स आर लूजिंग देयर हैबिटेट। सो ये भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट पे चेंजेस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग। देन थर्ड पॉइंट, इसके लिए क्या होता है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है एंड ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। बहुत सारा जैसे इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, गाड़ी मोटर से जो भी धुआं निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए क्या हो रहा है, और एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है प्लस डिस्टर्ब हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, और ये जो टेम्परेचर भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल रीजन नॉर्थ पोल या साउथ पोल जहाँ भी बहुत सारा आइसबर्ग है वो भी पिघलना स्टार्ट करता है, मेल्ट करना स्टार्ट हो जा रहा है। सो ये सब एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट पे चेंजेस हो रहे हैं। Okay, thank you students for watching the video.